Good evening, guys. Hello. Yes, so welcome to the Lakshya batch and let's get going. Let me share the PPT with you quickly. Just give me a second and I'll share the PPT, guys. सब लोग ज्वाइन कर ले, अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं. So चलो, so guys, yeah, this is the PPT. Just a moment, huh? Hi guys. Yes. Right. So let me quickly see who all are present. Hi Chani, Yogesh, Sadni, Gautam, Ayastha, Mihir, Laki, Loki, Devita, Astha, Mani, Poon, Janchal, and everyone else. Hi Anchita, hi Pratna, Shrikant, Aditi. Great. Good to see you, all of you guys. And let's begin with our PYQ series. And let's practice few more questions. थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज वापस. Not the typical arrangement one. ठीक है? So yeah. Hi Aditi. Great. So आ जाओ प्लस में और प्रैक्टिस करते हैं. प्लस में भी लर्निंग करते हैं. And thanks for using code SHARTN. Okay, guys. So I hope all of you are able to see the PPT. Yes, everyone. Right. So you also note down the code like Aditi. You can also use it, and the others have used. And this is a bit about myself. So please be part of this Telegram group. Let's start with this puzzle. Amazing puzzle. जो स्नैप वगैरह में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है. कैट में वंस ऐसा पजल आया हुआ है. So I'll share that caselet also. Hi guys. So all those who have just joined, please try for this question. It's a puzzle. It is also called binary puzzle, or you can also call it knight and knave puzzle. So there is Himesh, there is Honey, there is Bacha, and there is Tahir. They either speak truth or they lie. कैसे करेंगे इसको? बहुत कम स्टूडेंट्स का ये आंसर सही होता है, यूजुअली देखा गया है. Some really interesting IDs. Airtel has also joined. Once again, guys, suggest you not to fluke, try it, or just keep trying it rather than tick marking some answer.
because there is always a negative marking. Okay, chalo, let's see. So guys, essay question में how to answer such question. So Himesh says honey lies. Okay, Himesh says honey lies. Suppose Himesh true बोल रहा है, तो उस केस में हनी सही में झूठ बोल रहा होगा. Do you agree with this? If I assume that Himesh is a truthful person, so according to him, honey lies, so honey should be a liar. Honey says Badshah lies. Now we have considered honey as a liar. So Badshah lies, but actually honey जो बोल रहा है वो तो झूठ बोल रहा है, तो Badshah should be a truthful person. Do you agree with this? And yeah, Tahir says Badshah says Himesh speaks truth. तो ये सही हो गया. देखो, it gels with what we have considered. Badshah says Himesh speaks truth. और बादशाह भी सही बोल रहा है, हनी भी सही बोल रहा है, तो ये जो हमारा अजम्पशन था उसके साथ में जा रहा है. करेक्ट. एंड यस, एग्जैक्टली टू ऑफ हिमेश, हनी एंड बादशाह लाइज. कैन आई से ताहिर यहां पे गलत बोल रहा है, क्योंकि हिमेश, हनी और बादशाह में से सिर्फ एक ही लाई कर रहा है. तो हमें एक और चीज बताइए कि ऑफ हुम ऑलवेज टू लाई एंड द अदर टू स्पीक ट्रूथ. तो कैन आई से विद दिस अजम्पशन दिस होल्ड्स ट्रू. What if I take another case? अभी हम दूसरा केस भी लेके चेक करते हैं. हिमेश, हनी, बादशाह एंड ताहिर, truthful and liar. Now if I consider that Himesh was lying initially, तो उसके हिसाब से Himesh was lying and Himesh says Honey lies, तो Honey should be a truthful person. Honey says Badshah lies, so Badshah should be a liar. एंड फिर ये चौथा ट्रूथफुल हो जाएगा. तो कहना से ये भी तो सही हो गया. इसमें भी तो एग्जैक्टली दो लोग सही बोल रहे हैं, एग्जैक्टली दो लोग गलत बोल रहे हैं. करेक्ट. सो हु कैन बी द लायर? इट कैन बी हनी और ताहिर, और इट कैन बी हिमेश और बादशाह. कोई भी दो लोग हो सकते हैं. Guys, did you get this? And that's why you will go ahead with option D. So do not tick mark the answer immediately. This can also be the possibility. क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? Have you all understood? है ना. चलो, स्नैप के अंदर कंटिन्यूअसली कुछ 5-6 साल के लिए ऐसे पजल्स आए थे. ठीक है. तो फिर लास्ट ईयर नहीं आया था. आई थिंक लास्ट ईयर 2020 में नहीं आया था, तो इस साल वापस वो आ सकते हैं. Right. Now, just to quickly tell you guys, this is something for CAT 2022 Genesis batch by me. It's going to be on YouTube as well as on app like we had. थोड़ा सा अलग तरीके से होगा. So there will be 2 Genesis batches. ब्लू कलर, ऑरेंज कलर आपको याद रख लेना है जब भी आप कोई जगह पे नोटिफिकेशन देखते हो. सो ब्लू कलर विल बी फॉर क्वांट अपडेट्स एंड दिस विल बी फॉर LRDI. ठीक है. और इसमें अभी मैं आपको जस्ट बता देता हूं. आई एम जस्ट रिवीलिंग सम प्लान. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद बेसिक्स, बट दिस बेसिक्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम माय दोस बेसिक वीडियोस. उससे थोड़ा अलग बेसिक होगा. ठीक है. और इसमें हम बेसिक करने वाले हैं. सो जेनेसिस का मतलब ही होता है ओरिजिन ऑफ समथिंग, starting of something, origin of something. So this is a beginning for CAT 2022. So please spread a word. And कब से शुरू हो रहा है ये सब आपको पता चलेगा. Very soon I am starting, so you can expect in next 5 to 7 days. Okay, the first session will be conducted. But in between, I'll keep releasing some video about more information and few other things that you should know about Genesis batch. So I'll release on YouTube. सर कॉम्बैट में सिलोजिज्म आया था यस्टरडे. कैट में भी आता है क्या? आपने नहीं कराया. शिवम, कॉम्बैट किसने कहा कि सिर्फ कैट के लिए है? कॉम्बैट इज फॉर ऑल MBA एंट्रेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव. तो ऐसा नहीं है कि कॉम्बैट के अंदर जो आता है वो सिर्फ कैट के क्वेश्चन होते हैं. ये तो अजम्पशन है. ऑफ कोर्स कॉम्बैट में एनमेट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ये सारा आ सकता है ना. और बाय द वे, मेरा 12 बजे का जो सीरीज चलता है उसमें मैंने LRDI भी कराया हुआ है. कैसे हो सकता है? मतलब मैंने ये सिलोजिज्म भी कराया हुआ है. So I provide you the complete guidance, guys. Is it the last day of the series? Which one? For Lakshya batch quant, today is the last day. फिर कल एक टेस्ट रहेगा. Of course, tomorrow will be the test.
Right. Guys, life doesn't stop, right? लक्ष्य बैच खत्म होने पे लाइफ थोड़ी ना रुकती है, तो ऑफ कोर्स देयर विल बी समथिंग इन कमिंग अप. ठीक है. So जैसे फॉर एग्जांपल फॉर 2021 स्टूडेंट्स आई एम स्टार्टिंग समथिंग. It's completely a new concept. It's a 10 question video the session, 10 question session. तो मतलब सारे LOD 3 वाले हो गए अब. Only LOD 3. You will see my YouTube session, for example. Most probably tomorrow there will be a session. 5 completely very difficult question of times per distance. पूरे session में हम सिर्फ 5 question difficult question discuss करेंगे. फिर Wednesday हम 5 mixed relegation करेंगे. Thursday 5 PNC करेंगे. So there will be something new coming up for 2021 also. Okay. So yeah. कुछ ना कुछ मिलता रहेगा यार. Okay, chalo. So jaldi se guys, before we go ahead, here are the features of Plus, which most of you are aware about, but in case if you are new, so quickly understand, you get live classes, you get to interact with me, you can also get structured courses, unlimited access, weekly test, mock test, jo bhi aapko chahiye, JDPI prep, everything is included. And let me tell you, Plus is also for CAT. Plus includes CAT plus OMAT's preparation. तो ऐप में आपने देखा होगा कहीं जगह पे ऐसा लिखा है कि प्लस के अंदर कुछ लिखा है, फिर आइकनिक में लिखा है ओमैट्स. तो काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या ओमैट्स हमें सिर्फ आइकनिक में मिलता है? नहीं, प्लस में भी ओमैट्स का प्रिपरेशन मिलता है, लेकिन आइकनिक के अंदर उसका पर्सनल गाइडेंस मिलता है. पर्सनल आपको लर्निंग मिलती है. तो आइकनिक इज ऑल अबाउट पर्सनल कोचिंग, राइट? So this is what is mentioned, guys, over here. You get test analysis for yourself, study material, study planner. So there are many things in that. So here are the pricing plan for Plus. Apply this code and you will get 10% discount. And here are the pricing plan for Iconic. And there is a limited period offer going on. So please make maximum out of this offer before it goes away. Geometry की 80 सेकंड में, अरे नहीं आंचल, मैं क्वेश्चन ही ऐसे रखूंगा ना. सी ज्योमेट्री में क्या होगा, बाय लुकिंग एट क्वेश्चन या तो आपको वो क्लिक करेगा या नहीं करेगा, आपको क्लिक करेगा या नहीं करेगा. सो इफ यू आर एबल टू थिंक अबाउट दैट तो हो जाएगा, बट आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई कीप द क्वेश्चन विच आर सॉल्वेबल. तो अगर आप 10 में से 5 क्वेश्चन भी कर पाते हो, सो दिस इज गुड, है ना? So only because of you I get highest marks in DILR than the other two. Oh, thanks. That's good. That's really good. Chalo, guys, let's try for this puzzle. Everyone, go through it, and then I'll start the timer. Yes, guys, shall I start? There are 2 questions in this. They're just positive odd integers and even numbers and zeros, right? Do not assume they are continuous and all. Do not assume anything. Okay, थोड़ा सा आपको अपना मैथमेटिकल माइंड लगाना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, बट ऐसे पजल्स आते हैं, डेफिनेटली आते हैं. लेट्स सी. Hi Anki, Harshit.
Hi, Bragnak, then Maruti, Gautam, William, Sakshi, Rizwan, Yash, Disha, Deepak. Hello. तो सोच के करो दोस्तों. This is definitely a moderate puzzle. Not very easy, not very tough. चलो. हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. देयर आर 6 नंबर्स ना गाइस. एक काम करते हैं, पहले ये भी आप आंसर कर दो, देन लेट्स डिस्कस. ठीक है, पहले आप खुद से एक बार ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं. 5 into something can be odd ना, if these numbers are odd. Amrit, will show you. Will show you. वो odd ही होगा of course. A plus B plus C plus D plus F is odd for sure. तभी 5 into वो odd होगा. चलो. Exactly. Guys, we have 6 numbers, 2 odd numbers, 2 even numbers and 2 zeros. Do you agree with this, everyone? अब इसका टोटल तो डेफिनेटली इवन आएगा, इसका टोटल डेफिनेटली इवन आएगा. अगर मैं एक ऑड नंबर हटा दूं तो इसका टोटल मेरा ऑड आएगा. डू यू एग्री विद दिस? तो कैन आई से ऑफ कोर्स द मिसिंग नंबर दैट इज ई इज ऑड. यस और नो? क्या ये समझ में आया दोस्तों? द मिसिंग नंबर, इसमें क्या मिस हो रहा है? देखो 5 ही नंबर है, एक नंबर नहीं है, सो इट इज ऑड. तो मैं यहां पे लिख देता हूं. इससे हमें पता चला कि ई इज ऑड. ठीक है. अच्छा, E इंटू सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू डी, राइट, जिसमें E ऑड है. अच्छा, कैन आई से ये चारों तो जीरो डेफिनेटली नहीं होंगे, दे कांट बी जीरो, क्योंकि जीरो दो ही हो सकता है. तो या तो यहां पे ऐसा होगा कि E और C में से कोई एक जीरो है. आई कैन टेक इट दिस वे. देखो E तो मेरा ऑड है तो C जीरो है. लेट मी जस्ट राइट Z फॉर जीरो. तो C जीरो है, तो यहां पे A 2 इंटू ए इंटू डी में दिस इज नॉट इवन. दिस इज नॉट इवन मतलब ये या तो जीरो होगा या तो क्या होगा, ऑड होगा. डू यू अग्री विद दिस? राइट. तो अगर C जीरो है तो यहां पे कुछ और भी जीरो होना चाहिए. A और D में से कोई एक जीरो होना चाहिए. करेक्ट. सपोज मैं यहां पे A या D कोई एक जीरो ले लेता हूं. ठीक है ना, कोई एक जीरो ले लिया, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. बट देन हमें क्या कहा है? A इंटू डी इज ग्रेटर देन B इंटू ई, राइट. A इंटू डी इज ग्रेटर देन B इंटू ई. तो क्या यहां पे अगर आप A या D कोई भी एक जीरो लोगे तो ये किसी से ग्रेटर हो सकता है? नहीं हो सकता. और इसलिए हमें पता चला इस तरफ कोई भी जीरो नहीं है. A और D में से कोई भी जीरो नहीं है. क्या ये समझ में आया? तो डेफिनेटली राइट साइड जीरो नहीं है तो लेफ्ट साइड भी जीरो नहीं हो सकता. डू यू एग्री विद दिस? इफ दिस इज नॉट जीरो देन दिस कांट बी जीरो. तो मतलब मुझे एक चीज पता चल गई कि ए सी डी ई आर नॉन जीरो नंबर्स. नॉन जीरो नंबर्स. तो बचा क्या? बी एंड एफ.
दे आर जीरो। ये क्लियर है? BNF जीरो है नहीं, जीरो इज जीरो गाइस। जीरो को हम सिर्फ नेचुरल नंबर को इवन एंड ऑड क्लासिफाई करते हैं, याद रखना। हम सिर्फ नेचुरल नंबर को इवन या ऑड क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। जीरो ना तो इवन होता है ना तो ऑड होता है। अगर कोई नंबर में लास्ट में जीरो आता है तो वो नंबर इवन बन जाता है। दैट इज द प्रॉपर्टी दैट वी यूज। वाह, अरे वाह स्वरा, जीरो इज अ नेचुरल नंबर। नहीं सर, आप बेसिक्स ऑफ मैथ्स पहले कर लो। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन, होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। ठीक है गाइस, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं है। एक सेकंड रुको, हाँ सुनो। सो अभी तक मैंने सॉल्व ही नहीं किया इसको, तो हमें सिर्फ ये पता चला कि E इज ऑड। दूसरा मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये चार में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता। ये चार में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता, तो मुझे इतना पता चल गया बी एन एफ आर जीरो। अब यहां पे क्या कहा है, ए प्लस सी इज नॉट इवन, तो ये डेफिनेटली ऑड हो गए। और उसमें से ई हमारा ऑड है तो सी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या ये पता चल गया? तो मुझे यहां पे पता चल गया, क्या क्या पता चला मुझे अब तक दोस्तों? C is even, then E is odd, correct everyone? अच्छा दूसरा, एक सेकेंड ना, जस्ट सेकेंड, नहीं C हमें इवन कहां से पता चला, क्योंकि E ऑड है एंड दिस E इंटू C हमें इवन लाना है, तो C ऑड है तो E हैज टू बी इवन, ठीक है ना। C ओ सॉरी, E ऑड है तो C हैज टू बी इवन, ठीक है। ये ऑड है तो दिस हैज टू बी इवन। यू ऑल अग्री विद दिस गाइस? क्या ये समझ में आया? क्योंकि देखो मैं फिर से एक बार बताता हूं, आई थिंक थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए, इसलिए मैं फिर से बता देता हूं। ये 5 नंबर ऑड है टोटल, तो इससे हमें पता चला कि जो मिसिंग नंबर है ई, दैट शुड बी ऑड नंबर, फर्स्ट पॉइंट। ओके, फिर हमने कंक्लूजन निकाला कि ये जीरो नहीं है, तो इससे हमें पता चल गया बी एन एफ बोथ आर जीरो, ठीक है। बी एन एफ बोथ आर जीरो, राइट। ओके, अब यहां पे ई ऑड है एंड ई इंटू सी इज इक्वल टू टू इंटू समथिंग, तो ये रिजल्ट इवन है तो इस तरफ इवन लाना पड़ेगा। तो अगर ई ऑड है तो सी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? तो गाइस फिर से एक बार करते हैं, हाँ ए बी सी डी ई एफ, उसमें मुझे पता चल गया ये जीरो है, ये जीरो है। मनु मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप वापस उधर गोल गोल घूम रहे हो, ठीक है। तो एक बार वापस सुन लेना तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों जीरो है, ई ऑड है तो सी इवन होना चाहिए, ठीक है। अब दो हमें क्या क्या मिल गया यहां पे, एक ऑड मिल गया, एक इवन मिल गया, दो जीरो मिल गए। अब ये दोनों में से कोई एक ऑड होगा, कोई एक इवन होगा, करेक्ट। तो डेफिनेटली अब यहां पे a इंटू डी इज ग्रेटर देन b इंटू ई कहा है। अच्छा, a प्लस सी इज नॉट इवन, मतलब क्या आएगा, ऑड आएगा, और c इवन है तो a क्या होना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है ना। और तो ये क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हाँ, अरे मैं ऑप्शन से नहीं जा रहा हूं भाई, आप एक्चुअल एग्जाम में ऑप्शन से जाना, अभी के लिए हमें इतना ऑप्शन की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से भी आप जा सकते थे। तो गाइस अल्टीमेटली टू ऑड नंबर्स कौन से हुए, सो द ऑड नंबर्स आर ए एज वेल एज ई, ठीक है। दिस आर द टू ऑड नंबर्स, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो गाइस ए इंटू डी क्या होगा, इवन, क्योंकि ए क्या है, ऑड है, इंटू इवन है डी, तो ये रिजल्ट इवन आएगा। अभी क्लियर गाइस? चलो लेट्स टेक वन मोर एवरीवन, या लेट्स गो अहेड। मुझे नहीं लग रहा है ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट होना चाहिए वैसे, ठीक है। Go through the data quickly.
Sure. So let me show you the leaderboard and then we'll go ahead. Right. So Mehak, Shriyansh, and Churchill, you're on the top. Good. Guys, पहले दूसरे क्वेश्चन ले लेते हैं and then we'll check the other. I'll explain that. Hi Priyal, Aditya, Shruti, Ritika. Okay, so from tomorrow you can join from 4 p.m. अभी ये क्वेश्चन कर लो, आराम से कर सकते हो आप. It's not very difficult. LOD 1, absolutely. Sure. So let's take another one and then. Acha guys, before that, please quickly check my schedule and keep attending sessions like this. Okay. So who is the wife, guys? Should not be very difficult to figure out. Who is wife of T? Okay, so just to quickly, arrange the data in case if you didn't get it right, guys. Just 5 people: P, Q, R, S, and T. So we need to just understand the gender and the game that they play. चलो अब वो छोड़ो, 0.1 सेकंड में कैसे किया उसने, वो छोड़ो. राइट, बट दैट वाज हॉरिबल. ठीक है, 0.1 सेकंड. सो गाइज यहां पे क्लियरली बताया PNSR अनमैरिड लेडीज. ठीक है, सो फीमेल फीमेल ये दोनों हो गए. Q is the brother of R, so Q is male. And is neither a chess player nor a tennis player. तो Q is neither a chess nor a tennis player. ठीक है, नो लेडी इज आइदर अ चेस प्लेयर और बैडमिंटन प्लेयर. तो कोई भी जो लेडी है वो चेस या बैडमिंटन नहीं खेलते हैं. ठीक है ना, ये हमें पता है. Further, there is one married couple in this group of which T is the husband, so T is definitely male. And yeah, तो अभी यहाँ पे कौन आएगा, ये दोनों तो अनमैरिड है, so definitely ये फीमेल होनी चाहिए and she should be wife of T. ठीक है, right. So guys, ये हमें पता चल गया. Now Q neither plays chess nor tennis. Q चेस और टेनिस नहीं खेलता है, लेडीज भी ये गेम नहीं खेलती है. ठीक है ना, सो नो लेडी प्ले चेस और बैडमिंटन. तो यहां पे भी चेस और बैडमिंटन नहीं आएगा, ये सब में चेस बैडमिंटन नहीं आएगा. तो गाइस कहां पे आ सकता है? ठीक है, तो कहां पे आ सकता है आपका चेस? चेस एंड बैडमिंटन लेडी नहीं खेलती है, तो कैन आई से बैडमिंटन यहां पे आ जाएगा, चेस यहां पे आ जाएगा. यू अग्री विद दिस? क्या ये अग्री करते हो? हाँ, कोई भी एक, चेस बैडमिंटन बैडमिंटन चेस. क्या ये हमें पता है कि ये खेलता है? आर टेनिस खेलेगा, डेफिनेटली आर विल प्ले टेनिस. हमें उसकी जरूरत भी नहीं है इसमें से एग्जैक्टली कौन चेस खेलता है और कौन बैडमिंटन खेलता है. क्यों, कहां पे लिखा है टी बैडमिंटन, कहां पे लिखा है? Q is the brother of R, in neither a chess player
नॉर अ बैडमिंटन प्लेयर। अच्छा, तो ये चेस आना चाहिए, ये बैडमिंटन आना चाहिए, तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे चेस आ जाएगा, खत्म। ठीक है, नहीं क्यू यहाँ पे लिखा है ना, क्यू इज चेस और टेनिस नहीं खेलता है, क्यू डजंट प्ले चेस और टेनिस, तो मतलब क्यू क्या खेलेगा, बैडमिंटन खेलेगा, राइट। So guys, now you can easily make out the three ladies are definitely P, R and T, which is not given. Similarly, who is the tennis player? So you can easily make out okay, R is the tennis player and wife of T is also R. Right? Sure. Let's take one more caselet, guys. Now this is a cat caselet. और ये एक अच्छा केसलेट है, शायद मैंने एक बार आगे कराया हुआ है लॉन्ग बैक, सो इन केस इफ यू हैव अटेंडेड कोई पहले का सेशन, बाकी इट्स अ फ्रेश केसलेट फॉर ऑल अदर्स। तो लेट्स सी कितना सही करते हो। अच्छा, दिस वाज क्लासिफाइड एज एन इजी केसलेट, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो, मे बी मॉडरेट भी नहीं है, कैट के लेवल पे तो इजी कहेंगे इसको। सिम्बायोसिस, बट सिम्बायोसिस का स्पेलिंग गलत लिखा है आपने। So guys, go through the data, take 2 minutes and try to create a table like this. कैसे सेल को आइडेंटिफाई करना है वो इस पार्ट में बताया हुआ है, सो प्लीज मेक श्योर यू हैव प्रॉपर्ली नोटेड दैट। अच्छा, all those who are new to my session, please be part of the Telegram group. I'm just pinning the link in the group in the chat box. So this is the link of the group. Please join that group. मैंने पिन किया हुआ है लिंक। So there are 25 numbers, of course, and the numbers must be in a numbers must be single digit natural number from 1 to 9. No cell should remain empty. The same number cannot repeat it twice in the respective row or column. एक कॉलम में सेम नंबर नहीं आना चाहिए, रो में भी, सॉरी। द नंबर ऑन द लेफ्ट मस्ट बी ग्रेटर देन द नंबर ऑन द राइट। ठीक है, इससे क्या पता चला दोस्तों, इससे सिंपल ये पता चल गया कि दिस इज 5, सो दिस हैज टू बी 4, 3, 2 एंड 1। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि सेम नंबर रिपीट करना नहीं है, और यहां पे 5 आ गया मतलब 4, 3, 2, 1 ही होना चाहिए। मतलब अभी ये कॉलम में 1 या 2 नहीं आ सकते, ये कॉलम में 2 नहीं आ सकता, है ना। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 2 यहां पे है तो 3, 4, 5, 6 ले लो, ऐसा चलेगा। क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5, 4 लेना हो सकता है, एंड सो एंड सो फोर्थ। अभी क्लियर? मैंने जस्ट आपको कुछ हिंट दिए हैं। लेट मी शो यू द क्वेश्चन नाउ। सो आप इस तरीके से ग्रिड कंप्लीट करोगे। पहले जस्ट मैंने नंबरिंग किया है इसमें, एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इज द नंबर इन सेल C2? दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। हाँ, नहीं, अच्छा चलो, ये तीटा क्वेश्चन ही है। गाइस प्लीज एंटर योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Isn't this very easy question? क्यों? 6 से बड़ा नंबर लेना है। अगर मैंने यहाँ पे 7 की जगह पे 8 लिया तो ये 9 ही आएगा, बट 9 दो हो जाएंगे। So the only possibility is you will have to take 7 and 8 over here. ठीक है, ये तो हमने पहले ही किया था। 5, 4, 3, 2, 1, करेक्ट। 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे कर देते हैं तो ये भी जेल हो गया, राइट। अब यहां पे 8 ले लो तो यहां पे 6 ले सकते हो, करेक्ट। 8, 7, 6, 5 ऐसा ले लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 आएगा। यहाँ पे 4 and 5 ले लो, तो सारे आपके क्वेश्चन तो वैसे ही सॉल्व हो गए, है ना। जस्ट 2 नंबर्स आर लाइक 3, 4, 5 भी ले सकते हैं, 6 and 7 ले सकते हैं यहाँ पे। सो इफ यू चेक, कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है वेयर द सेम नंबर इज रिपीटेड, कोई भी रो ऐसा नहीं है, ठीक है। बट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज नॉट द एक्चुअल क्वेश्चन। तो अभी क्वेश्चन आएगा, ये तो एक इजी अरेंजमेंट था, राइट। गुड टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस?
एक बार थम्स अप दिखा दो सो आई कैन गो टेक यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ठीक है, श्योर. लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन. सो गाइस यहां पे कौन सा आएगा? व्हाट इज द नंबर इन सेल E3? E3 में क्या नंबर लिखा था हमने? व्हाट इज द नंबर ओवर देयर? E3 में भी 7 ही है ना? राइट. नाउ स्टार्ट्स द एक्चुअल क्वेश्चन. सो प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस. I hope all of you have noted down this number: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 8, 7, 6, 5, 4, 5, 6, 7. These are the numbers that you have. Now, how many cells have numbers which are equal to the sum of the row numbers and the column number representing that cell? Just a second. Just sorry guys. Right. हाँ. क्या आंसर आएगा? How many cells have numbers which are equal to the sum of the row number and the column number representing that cell? Sum of the row number and the column number of that cell. ये आपको पूछा है. तो कितने नंबर्स हो गए गाइस? ऐसे 4 नंबर्स. करेक्ट. देयर आर 4 सच नंबर्स. नाउ व्हिच आर दोस नंबर्स? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड. तो गाइस यहां पे देखो, ये A1 है, ये 2, 3, 4, 5. तो 1 + 1 यहां पे 2 होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था. यस, दिस इज दैट. ठीक है ना? कैन आई से A3 में हो रहा है, फिर B2 में हो रहा है, A3 B2 देन C3. करेक्ट. एंड फिर कौन सा आएगा? D2 तो नहीं हो सकता. अच्छा, D2 हो रहा है क्या? नहीं. हाँ, D2 होगा. और E में कोई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. E में कोई भी नहीं है. सो ये जो 4 मैंने सर्कल किए हैं वो आपके हो गए. अभी क्लियर? A3 देन B2 देन C3 एंड D2. तो 4 सेल हो गए. करेक्ट. चलो, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स ट्राई फॉर वन मोर सिमिलर वे. Yes. Now this one is a slightly tricky one. अब यहां पे कॉनकैटेनेटिंग का मतलब भी दिया हुआ है आपको. फॉर्मिंग अ चेन, कनेक्टेड, फॉर्मिंग अ चेन. So number formed by concatenating the numbers into consecutive cells of the same row from left to right is represented by A. How many unique values of prime A's exist? ठीक है, ये आपको पूछा है. तो मतलब यहां पे कितने प्राइम नंबर बनते हैं वो हमें देखना है. और यूनिक प्राइम नंबर बनने चाहिए. मतलब अगर दो जगह पे सपोज आपका बना 13 तो ये एक ही काउंट होगा. संदेश, रिफ्रेश, प्लीज रिफ्रेश योर ऐप. क्वेश्चन विल बी विजिबल. Rahul is saying 1, Isha is saying 1. What about others? गाइस सिर्फ एक ही बन रहा है. कहां पे बनेगा बताओगे? कहां पे बन रहा है? 4-3. करेक्ट गाइस, सिर्फ यही बनेगा 4-3. देखो यहां पे आप देखो 65, 54, 43. तो 43 बना, 32,
54, 43, 32, 21, 87, 76, 65, 54 कोई भी नहीं बना। तो यहां पे लास्ट डिजिट तो ऑड ही आना चाहिए, फिर से यहां पे बना 43, यहां पे बना 43, तो एक ही वैल्यू बन रही है 43, अनलेस यू फील दैट 87 इज अ प्राइम नंबर, विच इज नॉट। ठीक है, 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो ओनली वन। कौन सा? 43। अभी क्लियर? चलो guys, so just to quickly tell you about skill builder, this is the series of tests that is conducted. It's open to everyone, you can take up this test, ठीक है, एवरी डे 7 बजे, और वो आप बाद में भी लिख सकते हो, और जब भी आप जाते हो तो आप शार्टेन कोड यूज करके ही जाना, यूज दिस कोड शार्टेन। ठीक है, दिस आर सम ऑफ द न्यू बैचेस, आई मीन ये थोड़े से ओल्ड बैचेस है, अभी भी नए शुरू हुए हैं, 18 से एक हुआ है, 21 से हुआ है, एंड ऑफ कोर्स मेरा भी अलजेब्रा का आ रहा है अभी, एंड फॉर आईपी मैथ स्टूडेंट्स आल्सो वी हैव न्यू बैचेस। फाइन, नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है यहां पे, यू नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी। हम्म 13/25, 12/25, yeah. So guys, how many prime numbers are there? Can I say there are total 13 prime numbers? Sorry, there are 12 composite numbers. ठीक है, so 13 doesn't have a composite number, so 13 numbers are prime or 1, prime और 1 भी आ सकता है ना, 1 is not composite, so आपको 13/25 करना पड़ेगा, करेक्ट? जस्ट अ सेकेंड, हाँ नहीं गाइस, 13 प्राइम नंबर प्लस 1, 14 हो जाएगा, 13 प्लस 1, सो 14 करना पड़ेगा, दिस इज कॉमन मिस्टेक, डू यू एग्री विद दिस? 14/25 0.56 आएगा, द आंसर इज 0.56, क्योंकि 11 कंपोजिट नंबर है। लेट्स क्विकली चेक गाइस, जल्दी से देख लेते हैं। देखो कंपोजिट नंबर कौन कौन से थे इसमें, अगर आप देखोगे तो जो कंपोजिट नंबर है उसको मैं साइड में कर देता हूं, 1 2, ठीक है, देन 3, देन 4 5 6, देन 7 8, देन 9 10 and 11. There are 11 composite numbers. Did you get that guys? तो remaining 14 are not composite, तो इसमें गलती हो जाती है, तो गलती मत करना, ठीक है दोस्तों? यस, चलो अभी इसका आंसर बता दो फिर। इसका आंसर रेयरली 1% स्टूडेंट ने सही दिया है, क्वेश्चन इंटरप्रेट ही नहीं करते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय इंस्टेंसेस? गाइस फाइनल अरेंजमेंट में 1 कितनी बार आ रहा है?
फाइनल अरेंजमेंट में 1 कितनी बार आया? 1 बार। 2 कितनी बार आया? 2 बार। 3 कितनी बार आया? 3 बार। डू यू एग्री विद दिस? 4 कितनी बार आया? 4 बार। क्या ये मानते हो आप? राइट? तो मतलब अभी मुझे क्या करना है? 1 2 2 3 3 3 एंड 4 4 4 4 अरेंज करना है. So guys, these numbers, in how many ways can I arrange them? Can I say 10 factorial divide by 2 factorial into 3 factorial into 4 factorial? क्या ये समझ में आया दोस्तों? So ये आपका आ जाएगा 12600. Correct. So answer is 12600. चेक करो देखो. Yes, everyone. Clear हुआ? See, what they were saying is, if all the instances of digits 1 to 4 that are finally present in this table are arranged in a line, मतलब अगर ये सारे इतने सारे instances, there are 10 instances of digit 1 to 4. अब अगर मैं उसको एक लाइन में अरेंज करता हूं, so 10 factorial ways में अरेंज होते हैं, but there is a repetition, so divide by that many factorial. It's a simple factorial, it's a simple arrangement concept. अगर आपने अरेंजमेंट नहीं किया है तो शायद ये आपको कंफ्यूजिंग लगेगा. So when you will do your permutation combination, I'm sure you will understand this part. Are we clear? Okay. Fine guys. So अभी हम लोग मिलेंगे 6 बजे at 6 PM and I'm starting with 3-dimensional geometry, solid figures आपको कह सकते हो. पूरा हम बेसिक से करेंगे solid figures. So please be there at 6 PM on YouTube. ठीक है, मिलते हैं फिर. And you can access my previous sessions from here. So आज के लिए सेशन हम इतना रखते हैं and make sure you have joined the group. The link has been pinned. And if you want to go for emotional session, why emotional session? यश प्लस ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आ जाओ. ठीक है, यहाँ पे मुझे पिंग कर सकते हो, कुछ भी प्लस रिलेटेड क्वेरी है. That's it. Don't forget to like the session, guys. Thumbs up button दबा देना. Please share it with your friends. अरे आज लास्ट 6 बजे वाला है, ठीक है, और फिर भी उसका टेस्ट होने वाला है ना? चलो, right. That's it, guys. Bye bye. See you.